Can you hear me? Yes. Good morning, Dr. Lam. Oh, okay. So, 10 o'clock. Okay. So, whenever you're ready, you can open with your prayers and blessings. Could you say that again? I didn't really hear. I said, can you please open with your prayers? Sure. Let's pray together. Lord, we are grateful for this day you've given us, for another opportunity to come apart from our lives to study and prepare to become better ministers of your word in your church and in your world. We ask that you would be with each student here as they approach the end of their work days and now come to study. We ask that all that we would do, think, and say would be for your glory, as we ask in Jesus' name. Amen. 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 Thank you very much. Okay, well, today we are going to move ahead and look at how do we interpret the letters of the New Testament. आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कौन से तरीकाकार है जिसके जरिए से हम जो खतूत लिखे गए हैं नए ऐदनामे में उनकी जो है तशरीह कर सकें. Now, one thing that we need to keep in mind about letters is that these are the most sustained, involved. Let me start that again. That's not coming out right. The thing we need to remember about epistles or letters is that these are the most structured and logically oriented forms of literature that we have in the Bible. और आप इस बात को हमेशा याद रखें कि बाइबल के अंदर हमारे पास जौन सा भी अदब मौजूद है उसमें से सबसे ज्यादा जो अच्छे तरीके से तरतीब दिया गया है वो जो है वो खत हैं जो कलीसियाओं को या मुख्तलिफ शख्सों को लिखे गए. Now, what this means is that the writer of a letter is trying to make a point, and he is structuring his argument very meticulously to reach the goal of that argument. और जो खत के अंदर क्या होता था या क्या होता है खत के अंदर उसका जो लिखने वाला है वो जो भी अपना आर्गुमेंट्स पेश करना चाहता है उसको इस तरीके से पेश करता है कि वो उसको काफी बेहतर तरीके से बाद में लोगों को समझा भी सके. So when we are interpreting letters, it's very important to follow along with the writer so that we can determine what he's trying to say and how he's trying to say it. और इसलिए जब हम खतूत को पढ़ते या तशरीह करते हैं तो हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि वो जो लिखने वाला है उस खत का वो क्या बताना चाह रहा है और किस तरीके से बताना चाह रहा है. Now, it's also important to know that epistles or letters often follow a structure that was very common in the Greco-Roman world. और इसके अलावा ये जितने भी खतूत हैं ये इनका जो साख्त है ये इनको इस तरीके से लिखा जाता था जो कि उस दौर में जो कि ग्रीक का और रोमियो का जो दौर था उस दौर के अंदर जितने और भी खतूत लिखे जाते थे जैसे कोई भी लोग खतूत लिखते थे तो वो सब के सब इसी तरीके से लिखे जाते थे. So not only do we have to follow the progress of the argument, we also have to know what part of the letter we are in when we're interpreting. और इसके बाद जब हम उसकी तशरीह कर रहे होते हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ वो जो आर्गुमेंट पेश हुआ है वो ही नहीं देखना बल्कि हमने देखना है कि हम उस खत के किस हिस्से में हैं. So the first thing we want to do is look at what are the elements of a letter written at that time. और पहली जो चीज हमने देखनी है वो ये है कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं जो उसमें शामिल होते थे एक खत के अंदर. Now, the first part of a letter is what we call the salutation,
and it tells us who is sending the letter, who is receiving it, and also a greeting. और सबसे पहला जो हिस्सा हम देखते हैं खत के अंदर वो है कि उस खत के अंदर जो है आप जो तहमीद बांधी जाती है या सलाम दुआ किया जाता है, उसके बाद भेजा किसने है उसका नाम होता है, किसको भेजा है उसका नाम होता है, और उसके बाद जो है वो ग्रीटिंग्स होती हैं, और ये सब जो चीजें हैं उस आम खत का हिस्सा होती थी. Now, sometimes the salutation is quite long and might have a reason for writing the letter in it as well. तो कई दफा जो तहमीद है वो इतनी लंबी होती थी, तो बाद में जब हम उसको देखते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह थी. Now, following the salutation, we have what is called the thanksgiving and prayer section of the letter. और जब हम तहमीद को खत्म करते हैं तो दूसरा हिस्सा एक खत का जो शुरू होता था उसमें ज्यादातर शुक्रगुजारी होती थी या दुआ की जाती थी जिन लोगों को वो लिखा जाता था. And here the writer is saying that he is praying for the people or thankful for the people, and he does this so that he can get their favor before he enters into the letter. और ये इस तरीके से होता था कि जब भी जो खत लिखने वाला होता था वो उन लोगों के लिए या उन लोगों का शुक्रगुजार होता था, और उसके बाद जब उनके लिए दुआ कर रहा होता था तो इस तरीके से उसका उस शख्स के साथ या उस कलीसिया के साथ एक ऐसा ताल्लुक जाहिर करता था जिससे वो उन लोगों की या उस कलीसिया की जो है फेवर हासिल कर सके. So in many ways, this part of the letter is meant to flatter the audience so that they will feel good about what the writer is going to say in the rest of the letter. और ये जो खत का हिस्सा होता था जिसमें शुक्रगुजारी और दुआ की जाती थी वो दरअसल इसलिए होता था, ये इस तरीके से होता था कि जो उसके पढ़ने वाले हैं वो उसको पढ़कर जो है अच्छा महसूस करे, और उसके बाद जो भी पैगाम जो दिया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से कबूल करें. Now, the main part of the letter that has what the writer is really wanting to say is called the body of the letter. और उसके बाद जो मेन हिस्सा उस लेटर का होता था या होता है, अभी भी आपके सामने है, उसको बोलते हैं उस खत की बॉडी, कि जिसके अंदर वो तमाम बातचीत कही जाती थी जो खत के लिखने वाला करना चाहता था. Now, in New Testament letters, this usually is quite long compared to letters in the rest of the Roman world, but it also tends to describe something that's going wrong in the church that's being written to. और इस हिस्से के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी ये खतूत लिखे गए ये उस दौर के आम खतूत से काफी लंबे लिखे जाते थे, और उसके बाद जब भी ये खतूत लिखे गए तो उसके अंदर जो लिखने वाला था, जो भी कलीसिया या किसी शख्स को वो लिख रहा है, तो उसके अंदर जो कमजोरियां होती थी या जिन चीजों के मुतालिक वो बताना चाहता था कि उसको इम्प्रूव करे, तो वो बड़ी आजादी से उसको लिखता था. Now, again, this part of the letter is usually very involved and has what we would call the theological message of the letter. और ये जो खत का हिस्सा होता था ये बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता था कि जिसको भी ये खत लिखा गया है, और इसलिए हम इसको जो है कहते हैं कि ये इल्म अलायत से भरा होता था या ये थियोलॉजिकल जो है वो मैसेज दे रहा होता था. Now, following the body is what we call the exhortation or instruction section of the letter. और जो बॉडी के बाद जो खत का हिस्सा होता था उसमें ये होता था कि किसी तरीके से उसको ज्यादा जो पढ़ने वाले हैं उनको ज्यादा जो है जो बढ़ाया जाता था या उनकी हौसला अफजाई की जाती थी, और उसके बाद उसके अंदर मजीद जो इंस्ट्रक्शंस होती थी वो डाली जाती थी. Now, this is what the writer of the letter
wants the recipients to do based on what he said in the body of the letter. और यही जो है हिस्सा ऐसा भी था जिसके अंदर जो खत लिखने वाला है वो उनको वो वाली बात जो वो बताना चाहता था उसके ऊपर ज्यादा जोर देकर बताता है. So this part of the letter really sounds like the writer is commanding the audience to do something. और काफी दफा जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे जो खत लिख भेजने वाला है वो उसके पढ़ने वाले को जैसे हुक्म कर रहा है कि ये बातें उसने हर सूरत करनी है. Now, the end of the letter is what we call the conclusion, and it has a lot of different things that can happen in it. और जब हम खत के आखिरी हिस्से में देखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो कंक्लूजन होता है और उसके अंदर काफी कुछ हो सकता था. So here the author might include a greeting, a wish for peace, and a benediction or prayer on behalf of the readers. और इसके अंदर क्या होता था कि यहाँ तो जो है सलामती की दुआ की जाती थी और उसके बाद जो है बताया जाता था कि किस चीज की जो है वो ज्यादा जरूरत है और इसके बाद वो जो है एक दूसरे को जैसे जो है मोहब्बत में जो बोसे भी लिखे जाते थे. Now, this structure is the basic structure of letters that were written in the Roman Empire in the 1st century. और ये जो स्ट्रक्चर है ये वो वाला स्ट्रक्चर है आपके सामने जो रोमी सल्तनत के दरमियान के दौर में लोग इस्तेमाल करते थे. Now, the difference between New Testament letters and normal letters in the empire is that New Testament letters tended to be quite a bit longer. और जो रोमियो के दौर के अंदर जो आम खत लिखे जाते थे या वो खत जो हमारे नए ऐदनामे में मौजूद हैं उनके अंदर एक बड़ा डिफरेंस ये था कि जो नए ऐदनामे के खत हैं वो काफी लंबे होते हैं. Now, we need to keep in mind that sometimes New Testament writers would vary from this general format on occasion. और आप ये भी देखते हैं कि ये जो एक जर्नल फॉर्मेट है एक खत का जो नए ऐदनामे के खत लिखने वाले थे कई दफा वो इसके मुताबिक खत नहीं लिखते थे. So, for example, the letter to the Hebrews does not have a salutation or prayer thanksgiving section. मिसाल के तौर पर अगर आप इब्रानियों का खत देखें तो उसके अंदर आपको ना तो तहमीद नजर आती है और ना शुक्रगुजारी और ना ही दुआ. The letter to the Ephesians has an extra prayer in the middle of the letter. और जब हम इक्सियों का खत पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि तीसरे बाब के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन मौजूद है जिसमें सिर्फ दुआ की गई है. And then finally, Galatians does not have a thanksgiving or prayer section. और जब हम गलीतियों का खत देखते हैं तो उसके अंदर ना तो हमें शुक्रगुजारी नजर आती है और ना दुआ. And sometimes we can actually figure out what's important to the writer if they've varied the normal pattern. और कई दफा जो है हम ये भी देखते हैं कि जो खत का लिखने वाला है वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो क्योंकि वो शायद जो जरूरी बात कहना चाहता है वो फौरन उसकी तरफ आ रहा है. In the case of Galatians, when Paul does not include a prayer of thanksgiving section, it indicates to the listeners or the readers that Paul is very upset with them. और जब हम गलीतियों का खत देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ना तो शुक्रगुजारी मौजूद है और ना ही जो है दुआ मौजूद है. तो जब हम उस खत को पढ़ते हैं तो उससे हमें अंदाजा होता है कि जो पौलुस है वो गलीतियों की कलीसिया के साथ खासा जो है वो खफा है. So Paul goes immediately from the salutation in Galatians right into a very critical, a very strong critique of how the Galatians are behaving. और जो पौलुस है वो
जो उनको शुक्रगुजारी या दुआ करने की बजाय वो सीधा ही बताता है कि जो गलीतियों की कलीसिया है वो क्या कर रही है. So if a writer changes up the structure of a letter, we need to ask ourselves, why might the writer be doing that? और जब हम ये देखते हैं कि एक जो हमारे पास मेन स्ट्रक्चर मौजूद है उस दौर का, और उसके बाद जब हम दूसरे खत पढ़ते हैं तब हमें अगर ये स्ट्रक्चर नजर नहीं आता तो हमारे दिमाग में ये सवाल फौरन आना चाहिए कि ऐसा क्यों है. Now, when we're starting to think about interpreting letters, there are some basic things we need to keep in mind. और जब भी हम जो है खतूत की तशरीह करते हैं तो हमें जो है कुछ बेसिक जो बातें हैं उनको अपने दिमाग में रखने की जरूरत है. Now, the basic rule of interpreting letters is this, that you must follow the flow of the letter very carefully. और जो उसका सबसे जो बुनियादी उसूल है खत की तशरीह का वो ये है कि आप जब खत पढ़ें तो उस खत के अंदर वो जिस तरीके से बयान जारी है उसके मुताबिक आप उसको पढ़ें. So as you move through the letter, you need to pay close attention to the grammar that's used, to the particular words that are used, and how they all link together to develop a thought. और जब आप खत पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपने देखना है कि कौन सी ग्रामर इस्तेमाल हुई है, कैसे इस्तेमाल हुई. इसका मतलब ये है कि वो कौन से ज़माने में बात कर रहा है, वो एक लग शख्स के साथ बात कर रहा है, इस ज़्यादा के साथ बात कर रहा है. तो आप ग्रामर से इसको देख सकते हैं. इसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि उसके अंदर जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो कुछ अल्फाज ऐसे तो नहीं है वो बार बार इस्तेमाल कर रहा है, तो शायद वो बार बार इस्तेमाल करने का मकसद क्या है. Now, a lot of times when we read letters, we like to focus in on one single word, or we like to just pull one single verse out of it and start to think about what it means. और जब हम खत पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक जो लफ्ज को ही देख लेते हैं या एक कोई फिक्रा देखते हैं तो उसके मुतालिक सोचना शुरू कर देते हैं. But in letters, we really need to pay attention to how each paragraph is developed. लेकिन जब हम खत पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो एक बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने ये देखना है कि उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है या लिखा गया है. So what we really need to do is kind of move through the letter a paragraph at a time, and then within that paragraph, see what the logical relationships between ideas really are. और जब हम खत की तशरीह करते हैं, ये खतों को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने का तरीका ये है कि हम हर एक जो पैराग्राफ है उसको पढ़ें और उस पैराग्राफ के अंदर देखें कि जो खत लिखने वाला है वो अपने कौन से ख्यालात पेश कर रहा है. So we need to pay very close attention to what the ideas at a paragraph level are contributing to the overall argument of the letter. और जब हम खत को पढ़ते हैं तो हमने ये देखना है कि वो कौन से ख्यालात हैं जो है वो खत लिखने वाला अपने खत पढ़ने वालों के लिए जो है वो लिख रहा है. So this means that letters are probably the most difficult writings to interpret because they require the most careful attention. तो हमने ये देखा कि जितना कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है इसमें जो खतूत हैं उनको पढ़ना या उनकी जो तशरीह करना है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि हमें हर एक लफ्ज़ और हर एक पैराग्राफ के मुतालिक जो है खासी सोचो विचार करने की ज़रूरत है. Now, not only do we need to pay special attention to how the argument is structured, we also need to pay careful attention to the context of the letter. और सिर्फ हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि जो आर्गुमेंट्स हैं वो किस तरीके से जो है पेश हुए हैं,
बल्कि हमें ये देखने की भी जरूरत है कि उसका जो पूरा सियाको सबाक है, वो पूरी जो बातचीत है वो क्या है। Now, this means not only looking at the passages before or after a text we're looking at, but also what's going on historically and culturally in the world for those people who are reading the letter. और इसका मतलब ये नहीं कि जब आप कंटेंट में पढ़ते हैं या सियाको सबाक में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे वो पूरी बात क्या है, ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, वो दरमियान में क्या कहना चाह रहा है, बल्कि हमने ये भी देखना है कि वो उस वक्त की तारीख के लिहाज से क्या बात है और जिस कल्चर को, जिस सकाफत को वो लिखा जा रहा है, वो उसके अंदर रहकर उनको क्या बताना चाहता है। So if I'm reading 1 Corinthians, for example, then I really need to know what is life like in first century Corinth so that I can understand the life situation of those people reading the letter. जब हम पहला करंथियों का खत पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो करंथ का इलाका था या उसके अंदर पहली सदी में जिंदगी किस तरीके से, लोग किस तरह के थे, किस तरीके से उनका पूरी सकाफत थी। So we also want to pay attention to what we call the rhetorical situation of the letter, which means how is the writer talking to his audience? और इसके बाद हमें जरूरत इस बात की भी है कि हमने उस बयानबाजी को भी देखना है जो कि जो खत लिखने वाला है वो अपनी ऑडियंस के लिए जो है वो बयान कर रहा है। So here we're interested in the tone that the writer uses as he writes the letter. और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात ये है कि हमने उसकी बयानबाजी में देखनी है कि वो किस तरह का लहजा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। So is the writer trying to be critical or accusing, or is he trying to be comforting? We need to know that kind of thing as we interpret the letter as well. तो हमने ये देखना है कि क्या वो उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, क्या वो उनको तसल्ली दे रहा है, या क्या वो उनके अंदर से जो कमियां हैं उनको बता रहा है। Now, another basic thing we need to keep in mind is what we call common hermeneutics, which is another way of just saying use common sense. और एक और बात जो है जिसको हम मद्देनजर रखते हैं उसको हम बोलते हैं कि आम hermeneutics। जो आम hermeneutics या कॉमन hermeneutics का मतलब है कि आप अपनी सिर्फ कॉमन सेंस जो है वो इस्तेमाल करें। So, for example, in some letters we read things that we know we're supposed to do today. We don't even need to think about it. और कुछ जो लेटर्स हैं उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमें फौरन पता होता है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और जो ख़त का लिखने वाला है वो भी वही बात कर रहा है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जो ख़त का लिखने वाला कह रहा है वो हमें भी पता है कि क्या करना है। So in 2 Timothy chapter 2 verse 3, Paul tells Timothy to endure hardship, and that is a command that we need to be able to do as well. और हम दूसरा तिमोथियस उसके 2 बाब की 3 आयत में देखते हैं कि पौलुस जो है वो तिमोथियस को कहता है कि सख्त मेहनत कर। And on the other end of the spectrum, there are some things we know we just do not or cannot do. और उसके बाद हमें अगर हम मंशूर की दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें उससे भी पता चलता है कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना। So later on in 2 Timothy, Paul tells Timothy to take Paul's cloak and bring it to Paul. और हम जब दूसरे तिमोथियस 4 बाब और उसकी 13 आयत में देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो पौलुस है वो तिमोथियस को ये कह रहा है कि उसका चोगा लेकर आए। But what we know for sure is this: Paul is dead, and we cannot take a cloak to him. और हमें, can you repeat this please? Yeah, we know that we can't take a cloak to the Apostle Paul because the Apostle Paul is dead. और हमें पता है कि उस वक्त जो था पौलुस जो है उसकी वफात हो चुकी थी, तो हम कैसे उसका जो चोग है उसके पास लेके जा सकते हैं। So
that's a command we cannot fulfill. And we just know that by common sense. और ये जो एक हुक्म है शायद हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते और ये एक कॉमन सेंस की बात है. So, but most of what we read in the Bible is not easily obvious one way or the other. और जो कुछ भी हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं उसके अंदर जो है हमें ये देखना है कि हमें किस तरीके से उसको जो है समझने की जरूरत भी है. So sometimes we have to use other kinds of common sense, and that often refers to our theological background, our church's tradition, or cultural norms. और उसके बाद जब हम खतों की तशरीह करते हैं तो उसके अंदर हमने देखना है कि हमें विरसे के अंदर किस तरह की जो है इल्मे अलाहियत मिली है और जो जिस कलीसिया में हम हैं उसकी किस तरह की ट्रेडिशंस हैं और किसी भी कल्चर के अंदर कौन सी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल ना हो तो आप उसको किस तरीके से जो है उस खत को तशरीह करेंगे. So one of the things that we find causing problems is that for many of the things we read in letters, we don't have a consistent way of approaching them. और एक बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि बेशुमार जो बातें हम खतूत में देखते हैं हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम उसको मुकम्मल तौर पर जो है उस तक पहुंच सकें. So when we're interpreting letters, we have to ask ourselves, how can we get to a point where we interpret letters consistently? और एक जो बात ये है और वो ये है कि हम जब खतूत तक जाते हैं तो हम किस तरीके से हम ये सवाल करते हैं कि हम किस तरीके से जो खतूत हैं उनको जो है बड़े बड़े एक मुकम्मल तरीकाकार से जो है उसकी तशरीह कर सकें. Since so many things in the first century are different from the way things are now for us, we have to try to figure out, is there a way to read those old documents in a way that matters to us today? और अब हम अगर देखें तो पहली सदी और अब तक इन 2000 सालों के अंदर काफी कुछ तब्दीली है और हमने उन खतूत को इस तरीके से भी पढ़ना है कि वो उस वक्त क्या कह रहे थे और वो अब हमें क्या कह रहे हैं. And one of the ways we can go about getting consistency is to understand that a letter can never mean something that would have never occurred to the original author or readers. और आप एक बात को जो है वो हमेशा याद रखें कि कोई भी जो खत है वो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता जब तक उस खत के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है या तो उस खत के लिखने वाले के साथ उसका तजर्बा हुआ हो या उसके पढ़ने वाले के साथ उस बात का तजर्बा हुआ हो. So when we're reading a letter and we come across a piece of it and we try to interpret it, we need to ask ourselves, is this something that the Apostle Paul or the Corinthians or the Romans would have understood? और जब हम एक खत को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्या जो बात लिखी हुई है क्या पौलुस रसूल इसको समझता था, और अगर पौलुस रसूल जो है उसको इस बात का तजर्बा है तो क्या वो तजर्बा अगर वो कुरिन्थियों को लिख रहा है उनको भी है या वो अगर इफिसियों को लिख रहा है तो उनको भी है. So we need to be very careful not to read too much of our own situation into a letter and then say that's what Paul meant. और जो जरूरत इस बात की है कि हमने जब एक खत को पढ़ना है तो हमने इस तरीके से नहीं पढ़ना कि हम अपनी जो सिचुएशन है उस खत के अंदर डालने की कोशिश करें. Now, there's another thing that we need to keep in mind, and that is if our life situation and the life situation in a first century letter are the same thing, then we can assume whatever's written in that letter
is exactly the thing the writer would say to us. और दूसरा जो रूल है या दूसरा कानून है, आप उसको खतों को पढ़ते हुए उसकी तशरीह करते हुए ये देखें कि अगर आप ये कहते हैं कि पहली सदी के अंदर जो लोगों की सिचुएशन थी हमारी जो है वो भी ऐसी है, तो फिर शायद हम समझें कि हमें भी उसको वैसे ही लेना है जैसे कि वो लोग उसको ले रहे थे। Now, what that means is that somehow, if our world situation is the same that would have existed 2,000 years ago when the letter was written, then we can just take what was said and immediately apply it to our world. तो आसान ज़बान में इसको ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी आज हम देखते हैं हो रहा है, अगर हम ये जानते कि ऐसा सब कुछ ही आज से 2000 साल पहले भी था, तो फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हम बस उस खत को लेते और उसको उसी तरीके से मानते जैसे कि हम पहली सदी के अंदर रह रहे हैं। So a good example of this would be in 1 Corinthians chapter 6, when Paul tells the readers not to unite themselves to prostitutes. और उसकी एक बहुत बड़ी जो हम एक देखते हैं मिसाल के जब पौलुस जो है वो अपने पढ़ने वालों को ये कह रहा है कि आप जो हैं कोई भी जो वैश्य है उसके साथ ताल्लुक ना रखें। So engaging in prostitution or participating in it is something that was equally wrong then as it is now. और हमें ये पता है कि कोई भी जो शख्स जो है उस दौर में या आज के दौर में किसी भी जो कस्बी के पास जाता है तो वो गलत है, चाहे वो आज से 5000 साल पहले था या 2000 साल पहले या अभी है, तो इससे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें पता कि ये गलत है। So in obvious situations that works out well, but a lot of New Testament letters are addressing situations that don't really work in our world. और ये जो सिचुएशन है कि जब ग्रंथियों में कोई शख्स किसी कस्बी के पास जा रहा था तो पौलुस उसको मना कर रहा है, तो ये अभी हमारे लिए जो है भी वैसा ही है, लेकिन इसके बरक्स खतूत के अंदर बेशुमार ऐसी सिचुएशन मौजूद हैं जो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती या हम उस सिचुएशन में नहीं रहते। So we now need to turn our attention to the kinds of difficulties that we will experience when we're trying to read letters written to first century people and applying it to 21st century life. और एक जो बात ये है वो ये है कि जब हम पहली सदी के लोगों को एक जो है खत लिखा गया और उसको हम चाहें कि हम उसी तरीके से 2000 साल बाद किसी शख्स के ऊपर अप्लाई करें, तो वो थोड़ा सा एक मुश्किल बात है। So what we want to look at now are what we call problems in epistolary hermeneutics, or problems when interpreting letters. और इस बात को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि जो खतों की तशरीह है, जो नए अहदनामे के खतूत हैं, उनकी तशरीह के दरमियान क्या मुश्किलात हैं। So one of the problems that we can have when reading a letter in the New Testament is what we call the problem of extended application. और एक जो प्रॉब्लम जो है जब हमने अहद के खत पढ़ते हैं उसका नाम है कि एक ऐसा मसला जो कि एक एक्सटेंडेड एप्लीकेशन है। So what we're looking at here is this: if there are similar situations between our time and that time, is it legitimate to apply a text to a different situation today? Okay, can you please repeat that one more time? Yeah, so if there are situations in the first century that are similar to our day and time, is it allowable to take that letter and make it apply to a slightly different situation today? और अब हम देखते हैं कि आज से पहली सदी और अभी
दोनों अगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो दोनों जगहों पे मिलती है, तो क्या हम जो पहली सदी के अंदर उस कलीसिया को या उस शख्स को जो खत लिखा गया है, क्या हम उसको अभी मुकम्मल तौर पर वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं? Now, the reason that this is a difficulty is because sometimes we can see something in a New Testament letter that seems to talk about something that's present in our world today. और उसके अंदर थोड़ी सी जो मुश्किल ये है कि जब हम पहली सदी के अंदर जो एक सिचुएशन को देख रहे हैं और अब हम जो हैं उसी तरह की सिचुएशन को अभी देखते हैं, तो हम जो है क्या जो है उसके बारे में जो है ख्याल करते हैं? So maybe it's easiest if we look at an example to illustrate this. और उसको समझने के लिए हम एक मिसाल देखते हैं। So in 1 Corinthians 3, verses 16 and 17, Paul writes, "Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person, for God's temple is holy and you are that temple." और हम पहला कुरिन्थियों 3 बाब 16-17 में देखते हैं कि वहां पर यूं लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस जो है वो पाक है और वो तुम हो। Now, I have heard people say that what this verse means is that we need to exercise and watch our diets because our bodies are the temple of the Holy Spirit. और इसी आयत के मुतालिक मैंने लोगों को ये तशरीह करते हुए भी देखा है कि हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, जिम कर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम खुदा का मक़दस हैं और हमें अपने मक़दस को जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है। Now, we could say, we could look at our world and say, why, yes, we know it's very good for us if we are careful about what we eat and we stay active, because that's just healthy for our bodies. और ये जो है एक आम कॉमन सेंस की बात है कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत है कि हम अगर एक्सरसाइज करें तो उससे हमारा जो जिस्म है वो ठीक रहता है। But the real question is that what Paul is talking about in 1 Corinthians chapter 3? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो पौलुस है वो उस वक्त इस बात को बयान कर रहा है कि कुछ और कहना चाह रहा है? Now, if we look at 1 Corinthians 3, Paul is not telling us to take care of our individual bodies. Paul is talking about the well-being of the whole church. और जब हम इस पूरे जो है साको सबाक को पढ़ते हैं तो उसके अंदर पौलुस हमारे अपने जिस्म की बात नहीं कर रहा, हालांकि एक्सरसाइज वगैरह करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बात कर रहा है कलीसिया की कि कलीसिया जो है उसको किस तरीके से जो है वो पाक होने की ज़रूरत है। So it would be wrong for us to look at this part of 1 Corinthians and say Paul is telling us to exercise and eat right. और अभी जब अगर कोई शख्स इसकी तशरीह जो है वो ये कर रहा है कि हम खुदा का मक़दस हैं, हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और हमें जो है ऑर्गेनिक खाने खाने की ज़रूरत है। So if we want to argue that we need to watch our diets and exercise, we need to find a passage in the Bible that talks about that. और अगर हम ये कहते हैं कि पौलुस इस बात पर बात कर रहा है तो फिर हमें बाइबल में जो है अगर हम ये देखें कि हमने ये बात करनी है कि खुदा जो चाहता है कि हम जो है अच्छी खुराक लें और हम जो है एक्सरसाइज करें, तो फिर हमें एक ऐसी आयत ढूंढने की जरूरत है जो सिर्फ जो है इस बात के मुतालिक बयान करे। Now, we can also look at another example. और मिसाल देखते हैं।
where Paul says, do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि जो है नशे में गुल ना मचाएं बल्कि रूल कुदस में बढ़ते थे. Now, we could ask ourselves, would it be appropriate to use this verse to say, also don't get drunk with whiskey? और क्या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि पौलुस जब वाइन की बात कर रहा है तो हम विस्की की जो है बात कर सकते हैं इस जगह पे? So, if we look at this passage in Ephesians 5, Paul seems to be saying, don't get drunk, regardless of what you're drinking. So, this probably is a good way to apply Ephesians 5:18. अब जो पौलुस जो है जैसे उसने जो है लफ्ज़ यहाँ पर जो है मैं का इस्तेमाल किया है, तो कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं तो पौलुस तो मना कर रहा है कि मैं ना पियो, लेकिन वो विस्की पीने से तो मना नहीं कर रहा, तो हम विस्की जो है वो पी सकते हैं. लेकिन दरअसल जो है पौलुस हर एक किस्म की अल्कोहल की बात कर रहा है कि आप उसको नहीं पी सकते. So sometimes it's appropriate to apply a verse to a slightly different situation, and sometimes it's not appropriate. और कई दफ़ा ये होता है कि आप किसी आयत को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ऐसी सिचुएशन पे यहाँ पर उसकी ज़रूरत है और वो उधर ठीक भी लगती है, लेकिन काफ़ी मर्तबा जो है वो ऐसा नहीं होता. So the issue is, does our interpretation line up with what the letter writer was intending to say? इस तमाम बातचीत का करने का जो मकसद है वो ये है कि क्या जो हम तशरीह करते हैं वो तशरीह जो है वो वही तशरीह है जो कि जो उस खत का लिखने वाला जो है वो अपने लोगों को बताना चाह रहा है. Now, this kind of problem is one that we commonly come across when we're reading letters. और इस तरह की जो मसले हैं हम फौरन जो है जब उसको पढ़ रहे होते हैं तो हमें इस तरह के जो मसले हैं वो सामने आते हैं, इस तरह के सवालात जो हैं वो सामने आते हैं. And that's because many of the situations we see in the New Testament letters are situations that are kind of similar to what we experience today. और हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे मसले हैं जो उस वक्त लोग जो दरपेश थे या कलीसियाँ जिनको वो मसले थे वो आज काफ़ी मसले तकरीबन वैसे ही हैं. Now, another kind of problem we come across, though, is what happens when we read passages in the letters that are not similar to the things we experience today. एक और जो मसला है वो ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो कुछ तरह की मुश्किलात में हैं, लेकिन हम उस तरह के मामलात में नहीं हैं. And one of those kinds of situations is what that we might say, look, what I'm reading about in this letter just simply does not happen in my world today. वो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप अगर कोई खत पढ़ रहे हैं तो शायद आपके इर्द गिर्द या आपकी अपनी जिंदगी में वैसी कभी कोई सिचुएशन हुई ही ना. Now, in Galatians chapter 5, Paul talks about how there are those who came in from the outside of the church and told the church members they have to be circumcised in order to be saved. और अब हम देखते हैं कि इस तरह की जो मिसाल है वो एक हमारे पास है कि जैसे गलीतियों की कलीसिया के अंदर हम ये देखते हैं कि कुछ और लोग जो थे वो आए और वो कहने लगे कि अगर वो निजात हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें खतने की भी जरूरत है. In the world today, it's pretty much never going to happen that someone will come into a church and tell everybody to get circumcised in order to be saved. और आजकल की जो दौर में शायद ऐसा मसला किसी के साथ पेश ना आया हो कि वहाँ का पादरी कह रहा हो कि अगर आपने कलीसिया के अंदर या आपने निजात हासिल करनी है तो आप सब अपने खतने भी कराएं. I have this problem in one of the church.
Well, it's a big world, so Yeah. there's all that kinds of odd things. That guy was arguing is like very, really, I will discuss with you later. He was talking about even females too. Well, if in a situation like this, does that mean that I can't read Galatians 5 because this just doesn't happen for me? Yeah. तो इस तरह की जैसे सिचुएशन है, जैसे मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है, शायद आप में से काफियों ने नहीं देखी, लेकिन ये कि आप सिचुएशन के मुताबिक जो है आप उसकी तशरीह जो है वो करते हैं. So, but then there are also things that probably don't happen very often in our world, but the letters still talk about. लेकिन हम देखते हैं कि शायद हमारी जिंदगी के अंदर या हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं हमारे साथ ऐसा मसला ना हो, लेकिन कहीं और पे जाके इस तरह का जो मसला है वो हुआ हो और पौलुस जो है वो उसको बयान कर रहा हो. Now, again, the real issue is, of what benefit is a passage to me if it talks about something that I'm unlikely ever to experience? मेन जो इसमें अंदर बात है वो ये है कि इसका मुझे क्या फायदा है कि जब मैं इसको पढ़ता हूँ और मैं इसको किस तरीके से जो है वो देख सकता हूँ. So when we interpret this, one of the things we need to do is try to see if there is a principle that's behind the situation that's being discussed in the letter. और इसकी तशरीह करने का जो मेन सबसे तरीकाकार ये है कि एक क्या कोई जो बात पौलुस कर रहा है या कोई भी खत का लिखने वाला कर रहा है, क्या उसके पीछे को एक बकायदा प्रिंसिपल मौजूद है जिसकी बना पर वो ये बात कर रहा है. So, in other words, when Paul is talking to the Galatians about people coming in from the outside to tell them to be circumcised, I need to look at that and say, what is really Paul's problem with that practice? और अब अगर जब पौलुस जो है वो बात कर रहा है कि अगर कोई शख्स जो है वो कलीसिया के अंदर आ रहा है, किसी बाहर से मतलब ये है कि जो यहूदी नहीं थे, तो उसमें से अगर आ रहा है तो क्या उसको खतने की जरूरत है कि नहीं. So we might say in that situation, what Paul's difficulty is he does not want the Galatians to submit themselves to a legalistic interpretation of the law when they've experienced freedom in Christ. दरअसल पौलुस जो है ये जब वो बातचीत सारी कर रहा है तो वो ये बताना चाह रहा है कि जो गलीतियों की कलीसिया है उसको जो है वो शरीयत का जो कवानीन है उसके अंदर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब वो मसीहत में आते हैं तो उन्हें किसी तरह के खतने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मसीह जो है वो उनको आजाद करने के लिए आया है और वो कोई भी जो है वो कवानीन देने के लिए नहीं आया, बल्कि वो हमें जैसे आप कह सकते हैं रूह दे के देने के लिए आया ताकि हम रूह के वसीला से एक मुकम्मल अच्छी जिंदगी गुजारें. So maybe the principle behind Paul's problem with circumcision is something that could be applied today in situations where other kinds of legalisms are trying to be imposed on the church. और यहाँ पर जो वो प्रिंसिपल खतने की दे रहा है, खतने की मिसाल दे के वो जो प्रिंसिपल बता रहा है, तो अगर वो ये बात ना करता तो आज भी बेशुमार ऐसी बातें हैं जो शायद खतना नहीं है लेकिन वो मौजूद हैं, तो फिर लोगों ने कहना था कि पहले ये करो और फिर कलीसिया में तुम दाखिल हो सकते हो. So we really need to be careful, though, to make sure that the principle we discover is something that genuinely applies to something we are experiencing today. और दरअसल जो है हमने वो कायदा देखना है और उस कायदे को हमने आज की दुनिया के अंदर अप्लाई करके देखना है कि क्या वो हमारे ऊपर किस तरीके से लगता है, क्या हमें इसकी जरूरत है कि नहीं है. So the principle is only good if
it explains the situation the writer is writing about, but can also address another situation which is very much like that one. और प्रिंसिपल दरअसल जो ये है, जो कायदा है, वो ये है कि वो वाली जो सिचुएशन है उसको हल किया जाए जो उस वक्त मौजूद थी, और अगर उसी तरह की आज कोई सिचुएशन मौजूद है तो हम इस खत के इस बात का रेफरेंस दे के बता सकते हैं कि पौलुस जो है सपोज अगर ये कह रहा है तो हमें भी ये जो प्रैक्टिस है इसको करने की जरूरत नहीं है. So we can't just find a principle and apply it to everything that we want to. It has to be a similar situation to what was going on in the letter. और हम ये नहीं कर सकते कि हम उसी कायदे को पकड़ें और जहां पर मर्जी लगाना शुरू कर दें, बल्कि हमने वो सिचुएशन देखनी है और उसी सिचुएशन की तरह की अगर कोई सिचुएशन है तो फिर हमने वो कायदा है जो एक खत के अंदर बताया गया है उसको अप्लाई करना. So an example of this might be in 1 Corinthians 8, where Paul is addressing the issue of participating in what he calls the idols table. और यहाँ पर जो एक मिसाल जो है वो हम पहला करंथियों उसकी 8 बाब और उसकी 7 आयत से देखते हैं कि जब हम बुतों की कुर्बानियों की बाबत देखते हैं. Now, at least in North America, it's very unlikely that I will walk down the street and find a restaurant where the people in it are actually actively participating in idol worship. और आज अगर मैं अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर या यहाँ पर जो काफ़ी इलाके जो हैं कनाडा और इन तमाम इलाकों में अगर मैं जाऊं तो शायद ही हमें कोई ऐसा जगह नजर आए कि वहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर जो है वो लोग जो हैं वो कुर्बानियाँ करते हैं या बुतों की प्रस्तिश करते हैं और वो वाला गोश्त बेचते हैं. Now, in Paul's situation, what he's talking about is some Christians felt like they were strong enough in faith to where they could go and eat meat offered to idols in worship and not have a problem. और पौलुस जो है वो यहाँ पर ये आर्गुमेंट पेश कर रहा है कि कुछ जो लोग हैं वो रूहानी तौर पर इतने मजबूत होते हैं कि वो जाते हैं इन जगहों पर और वहाँ पर खाते पीते हैं और उन्हें कोई भी कुछ भी महसूस नहीं होता. But there are also some Christians in that situation that would have a very big problem in conscience if they were to do so. लेकिन उसके बरअक्स कुछ लोग जो होते हैं वो कमजोर ईमान के हैं और वो जब इस तरह की जो है एक चढ़ावे वगैरह जो है उसमें से खाते हैं तो वो फौरन कहते हैं कि नहीं जो है मैं नापाक हो गया हूँ या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए. So what Paul is doing here is saying those who have strong faith should not become a stumbling block to those with a weak conscience. तो पौलुस जो है वो इस मिसाल को इस तरीके से पेश कर रहा है कि वो लोग जो अपने आप को इतना ईमानदार ऐसा समझते हैं कि अगर उनके कुर्बानी के गोश्त खाने से उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ उनके ऐसे भाई मौजूद हैं जिनको फर्क पड़ता है, तो उनको चाहिए कि उनके लिए जो कमजोर हैं ईमान में उनके लिए, ताकि उनके लिए वो ठोकर का बायस ना बने, वो भी कुर्बानियों में शरीक ना हो. So what Paul is saying is the person with strong faith should not use his freedom of conscience to entice the weaker conscience person to commit that sin. और जो पौलुस है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि इस तरह के जो मामलात हैं उसके अंदर जो मजबूत ईमान वाले लोग हैं वो किसी तरीके से अपने कमजोर भाइयों के लिए ठोकर का बायस ना बने. So the principle here is I as a Christian today should not do something that is not wrong for me to make someone else do something that for them is wrong. और यहाँ पर जो कायदा जो दरअसल बयान करने की कोशिश की जा रही है
इस मिसाल को देकर वो ये है कि हमें कुछ ऐसा करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए जो किसी दूसरे के लिए ठोकर का बायस बने. It doesn't have to be a situation where it's meat offered to idols. It can be any situation today where my freedom to do something leads another person to do something they consider to be sinful. और ये सिर्फ यहाँ पर कुर्बानी के गोश्त का मामला नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा मामला जो किसी दूसरे के लिए ठोकर का बायस बन रहा है और आपको उसकी सेंस हो रही है कि ये मेरी वजह से उस शख्स के लिए ठोकर है, तो आप फौरन जो है ऐसा काम मत करें. Another example in 1 Corinthians has to do with what Paul calls the marketplace. और एक और जो इस तरह का मामला है वो पौलुस रसूल यहाँ पर बताता है, और वो ये है कि जो बाजार में बिकता है. Now, I learned when we did the Pauline epistles class that in Pakistan this is actually a very serious issue. और जब हम खतूत पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने पौलुस के खतूत के अंदर ये आपस में डिस्कशन में सीखा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है कुर्बानी का गोश्त खाना एक बहुत बड़ा मामला है. Now, what Paul is talking about here is that in the marketplace, there are certain people who sell meat who first offer it up to their idols or gods, and then turn around and sell it to people in their stores. और जो पौलुस जो है वो इस मामले को इस बयान करते हुए बताता है कि उस दौर में कुछ लोग जो थे वो कुर्बानियां जो शैतान के लिए होती थी उसके गोश्त को बाद में दुकानों में बेचते थे. Now, what Paul talks about here is saying, look, don't ask the storekeeper if he does this with his meat. Just go in, buy the meat, give thanks for it, eat it, you're fine. और पौलुस जो है वो इस सिचुएशन के अंदर ये बता रहा है कि आपको जरूरत नहीं है कि आप पहले जाकर पूछें ये कुर्बानी का गोश्त तो नहीं है, अगर कुर्बानी का है तो मैंने नहीं लेना, बल्कि आप जाएं और आप उसको खरीदें और आप उसके ऊपर शुक्रगुजारी उसकी करें, दुआ करें और आप खा जाएं. But if you are told that this actual meat you are now buying has been offered up to idols, Paul says we should probably not partake of it because it looks like we're participating in demonic activity. इसलिए जो पौलुस अगर कह रहा है कि अगर आपको ये पता है कि ये जो गोश्त है इसके ऊपर कुछ पड़ा हुआ है तो फिर उसको आप मत लें और मत खाएं. Now, in North America anyway, most of the meat we buy is just produced by some big factory somewhere. It's not offered up to idols. और जो आप दुनिया के ज्यादातर हिस्से जो हैं इस वक्त जो जितना भी गोश्त है वो जब काटा जाता है तो उसमें फैक्ट्रियां लगी होती हैं तो उसके अंदर जानवरों को जो है वो काटा जाता है. So now if I were to look at this passage, I would have to find other situations in my world where I need to avoid looking like I'm participating in demonic activity. और अगर मैं अपनी दुनिया के अंदर यहाँ पर देखूं तो फिर मुझे ये देखना है कि मुझे क्या अपनी इर्द गिर्द देखने की जरूरत है कि जो लोग विद्रोहों के लिए कुछ कर रहे हैं और मैं भी उसमें शामिल होगा. So it may not be that specific issue for me, but there might be other places and in other ways that demonic activity is going on. And I can read this passage and say, I need to avoid those places where demonic activity is happening. और मेरे लिए शायद वो एक जो है गोश्त का मसला ना हो, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए कुछ और ऐसे मामलात हो सकते हैं जहाँ पर लोग विद्रोहों की परस्तिश कर रहे हैं और वो विद्रोहों के आगे जो है वो चढ़ावे चढ़ा रहे हैं और मैं अगर उसमें किसी तरीके से हिस्सा लेता हूँ तो फिर ये वाला जो हिस्सा है ग्रंथियों का ये मेरे ऊपर अप्लाई होता है कि हाँ मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है.
So the principle in this passage is avoid the demonic. और यहाँ पर जो कायदा दिया गया है कि जहाँ पे भी आप देखते हैं कि कोई शैतानी या बदरूहों का काम है तो आप उसमें हिस्सा मत लें. Another kind of problem that we can come across in interpreting letters is what we call matters of indifference. और एक और जो मामला है जिसको हमें तशरीह के दरमियान खतूत की तशरीह के दरमियान आता है वो है कि इंडिफरेंसेस जो है वो मैटर्स के अंदर. And this is a situation where something might be particularly significant for a particular culture, but is not necessarily absolutely right or wrong. और ये जो मामला है ये दरअसल ऐसा मामला है कि जो पौलुस कोई भी खत लिखने वाला है वो खास तौर पर उस सकाफत के लोगों के लिए उस कल्चर के लोगों के लिए कुछ लिख रहा है जो दूसरों के ऊपर लागू नहीं होता. Now, one of the things that we have to kind of keep in mind when we interpret here is if the Bible itself says that something is a matter of indifference, not necessarily right or wrong, we can safely agree with that. और इसको समझने के लिए आप ये देखें कि जो अगर बाइबल ही किसी मामलात को इस तरीके से पेश कर रही है कि वो दो मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके लिए मुख्तलिफ है तो फिर हम उसके ऊपर सवाल शायद नहीं कर सकते. So, for example, in 1 Corinthians 7, Paul says that in some situations it's perfectly fine for people to get married, but in other situations it's perfectly fine not to get married. और हम पहला कुरिन्थियों उसके 7 बाब के अंदर देखते हैं कि पौलुस जो है वो कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल कवारा जो रहना है वो कोई मुश्किल बात नहीं है लेकिन कईयों के लिए है. So marriage is, it's a good thing, but not everybody needs to get married. और हमें पता है कि जो शादी जो है वो अच्छी चीज है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई शादी करे. Now, some cultures might really, really, really want their children to marry, but it's not necessarily absolutely right to get married. और कुछ कल्चर्स हैं जिसके अंदर जो शादी जो है उसको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है लेकिन ये बाइबल के नुक्ता नजर से तो जरूरी नहीं है. अगर आप शादी करें या ना करें इसमें कोई मसला नहीं. Now, matters of indifference are not intrinsically or inherently moral questions, they're cultural questions. और जब बात होती है कि जब मामलात में थोड़ा फर्क तो वो कोई जो है वो अखलाकी बात नहीं है बल्कि वो जो है वो एक सकाफत की बात है कि कौन सी सकाफत उसको किस तरीके से पेश करती है. But sometimes cultures are strongly influenced by religious ideas. लेकिन काफी दफा हम जब कल्चर्स को देखते हैं सकाफतों को देखते हैं तो उनके ऊपर जो है मजहबी अक़दार का बहुत ज्यादा असर होता है. But that does not necessarily mean it's an absolute moral question. लेकिन इसका मतलब ये है कि वो कोई एक किरदार बनाने का कोई क्वेश्चन उसके अंदर मौजूद नहीं है. So, for example, in Romans 14, Paul addresses two groups of people and what they choose to eat. और अगर हम देखते हैं रोमियो और उसके 14 बाब के अंदर जो पौलुस है वो दो मुख्तलिफ लोगों के जो ग्रुप है उनसे बात करता है कि वो क्या चूज करते हैं खाने के लिए. So, one group of people says there are certain kinds of meat we just simply will not eat, and that's because it's our religious tradition not to eat those. एक ग्रुप है वो जो कहता है कि खास किस्म का जो गोश्त है जो हम को नहीं खाते क्योंकि जो हमारा जो मजहब है वो उसकी इजाजत नहीं देता. So some cultures, well, they might be influenced by Jewish or Islamic ideas and say, we do not eat pork. और कुछ कल्चर्स जो हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो कि यहूदियत में है या जो कि इस्लामी मुल्कों में है और उनके दरमियान जो दूसरे लोग भी रहते हैं
उनके लिए जो जो सुअर को खाना है वो ये समझा जाता है कि वो ठीक नहीं है, गलत है। But there are other people who are not influenced by those religious contexts and would say eating pork is perfectly fine. लेकिन इसके बरक्स अगर कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जहां पर ना तो यहूदियत ज्यादा है ना इस्लामी जो अवतार हैं वो ज्यादा हैं, तो उनके लिए जो है कोई भी गोश्त जो खाना है वो उसमें कोई मसला नहीं। So the point is that some things are just cultural decisions and not necessarily absolutely moral considerations. तो इसलिए खतूत के अंदर जो कुछ चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी सकाफत के जो बारे में बयान करती हैं, ना कि उनके अखलाकियात के बारे में। But one thing we always have to keep in mind is whenever we see what we call a sin list, where Paul or a writer will just list off many sins, those are never matters of indifference. Those are absolute situations. और उसके बाद हम देखते हैं कि खतूत के अंदर कई दफा जो है वो गुनाहों की एक लिस्ट दी होती है, और वो जो लिस्ट है वो हर एक के ऊपर लागू होती है और हर एक दौर में लागू होती है। So when Paul lists the works of the flesh in Galatians 5, those things are always wrong. और जब पौलुस जो है वो गलीतियों 5 बाब और उसकी 19 से 21 आयत के अंदर जो बयान करता है कि जो जिस्मानी जो काम है वो क्या है, तो वो हर लिहाज में जो है वो गलत है। So whenever we see something that is a list of sins, we can never say, sometimes those are right and sometimes those are wrong. और जब हम इस तरह के गुनाहों की एक लिस्ट देखते हैं तो हम फिर ये नहीं कह सकते कि नहीं कुछ सिचुएशंस में ये ठीक है, कुछ सिचुएशंस में नहीं। Now, related to this is another problem we face, and this is a very big one, and it's called the problem of cultural relativity. और इसी के लिहाज से हमें एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है उसका सामना करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविटी। Now, what we mean by this is, given the fact that letters are written to a specific group of people in a specific time for a specific reason in a specific culture, how likely is it we can apply that to our completely different world? और अब उसको हम इस तरीके से कहते हैं कि कुछ खतूत जो लिखे गए हैं वो एक खास मौकों के लिए, खास सिचुएशन में, खास कल्चर को, खास जगह पर लिखे गए हैं, तो उसको हम अपनी जिंदगी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। So the issue is, are there some things talked about in letters that are only pertinent for that particular group of people at that time, but not for me today? तो क्या इसका मतलब खतूत के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ उस वक्त उन लोगों के लिए लिखी गई और ना कि अब के लोगों के लिए? Now, the reason this is tricky is because one particular example of this is when Paul tells Timothy he does not permit women to have authority or to teach men. Is that only for Timothy's church in the first century, or is it for every church in every place for all time? और इस तरह की सिचुएशन हम देखते हैं जब पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं कि जो औरतें जो हैं वो कलीसिया के मजमे में सिखा नहीं सकती, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ उस कलीसिया की लोग औरतों को कह रहा था कि हर दौर की औरतों को कह रहा है? And the thing we need to keep in mind is when Paul is writing to Timothy, Paul is writing for Timothy's particular situation, not necessarily
for people who would be reading this letter 2,000 years from now. और दरअसल अगर हम उसको देखें तो पौलुस उस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ तिमोथियुस की जो उस वक्त की हालत थी उसके मुतालिक उसको लिख रहा है, ना कि हर जगह और हर एक कलीसिया को. Now, we have to be careful here because we have to ask ourselves, is there some degree of cultural relativity in the Bible? In other words, are some things only for that culture but not for others? और अब जो कायदा है वो ये है कि क्या जो बाइबल के अंदर कुछ ऐसा मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ उसी सकाफत या उसी वक्त के लोगों के लिए है, ना कि दूसरों के लिए भी. So one of the things we have to do is ask ourselves, what is really the central core message of the Bible? अब सवाल ये है, दरअसल हमें ये जानने की जरूरत है कि जो बाइबल जो है उसका जो मेन जो मरकजी पैगाम जो है वो क्या है. So when we're reading a letter, whenever we're coming across an issue, is that actually an issue that is at the very heart of the biblical message? Or is it some issue that's just kind of peripheral to it or dependent upon the central message? तो जब हम बाइबल के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज को देखते हैं तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो उसके मरकजी जो उसका पैगाम है उसके साथ खड़ा होता है या उसके मुताबिक है कि नहीं है. So another thing we have to ask ourselves is what is inherently moral and what is not. So this is basically, again, is something a matter of indifference? और दूसरा जो है वो सवाल ये है कि क्या जो कुछ भी है वो अखलाकी तौर पर ठीक है या नहीं. Now, again, many times these matters of indifference are particular to certain cultures. और हम ये देखते हैं कि काफी दफा ये जो मामलात हैं ये मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर मुख्तलिफ होते हैं. So when we're reading something from our cultural perspective, maybe in our culture, something's not inherently moral or immoral, but it would be for a culture in the Bible, but it's not necessarily moral as far as the New Testament is concerned. और अब हम ये देखते हैं कि कुछ हम बात करते हैं कि शायद वो हमारी इस वक्त की जो सकाफत है या जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके अंदर जो है वो कोई बात जो है वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अखलाकी है कि नहीं है, लेकिन शायद उसी बात का जो है वो बाइबल के दौर में या जिस वक्त वो लिखा जा रहा है उसके ऊपर असर पड़ता है कि वो अखलाकी है कि नहीं, और शायद दुनिया के किसी और हिस्से में वही जो बात है उसका असर पड़ता है कि वो अखलाकी तौर पर ठीक है कि नहीं. Another thing we need to keep in mind is, where does the New Testament itself speak always consistently on an issue and where doesn't it? और हम एक और जो बात है वो ये है कि जो नया ऐद है वो क्या एक इशू के मुतालिक हमेशा एक जैसा बोलता है या उसी इशू के मुतालिक किसी जगह पर थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से बयान करता है. So in the New Testament, adultery is always wrong. और हम देखते हैं कि नए अहदनामे के अंदर हरामकारी जो है वो हमेशा ही गलत है. So, but then in 1 Corinthians, in chapter 11, we see that Paul says women can pray and prophesy in church, but 3 chapters later he says women must be silent in church. और हम देखते हैं कि पहला करंथियों जो है उसके 11 बाब में पौलुस कह रहा है कि जो औरतें हैं वो नबूवत भी कर सकती हैं और जो है वो कलीसिया के अंदर बोल भी सकती हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस कह रहा है कि नहीं, औरतें जो हैं वो कलीसिया के मजमे में नहीं बोल सकती. So, since Paul seems to say
at times women can speak and at times they need to be silent, maybe it's not an absolute rule that women must always be silent. Maybe it's cultural. और जो पौलुस जो है वो यही बात बताने की कोशिश कर रहा है उन दोनों जगहों पे कि ये एक जो है वो सकाफती मामला है कि यहाँ शायद उस सिचुएशन का मामला है कि कई जगह पर जो है वो औरतों को मना किया जा रहा है कि वो मत बोलें, लेकिन कई जगह पर जो पौलुस कह रहा है कि औरतें जो हैं वो नबूवत भी कर सकती हैं. Now, it's also important to distinguish within the New Testament between principle and specific application. और एक और जो बात है वो नए ऐहदनामे के अंदर हमें ये भी देखना है कि एक जो कायदा क्या है और दूसरा उसी कायदे को मुख्तलिफ जगहों पे किस तरीके से इस्तेमाल किया गया. And we talked about that earlier with the issue of circumcision, that there's a principle that is beneath the actual specific instance of circumcision. और वो हमने अभी उसके मुतालिक बात की कि एक बाकायदा जो है खतने के मुतालिक एक कायदा है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा. So we would want to know, even we would want to be able to distinguish between the principle which is applicable elsewhere, even when a specific instance is not. और तो हमें फिर इसमें जानने की जरूरत है कि जब एक बाकायदा कायदा मौजूद है तो फिर हमने उस कायदे के मुताबिक चलना है, ना कि हमने ये देखना है कि वो कहाँ पर कैसे जो है इस्तेमाल हो रहा है. Now, it's also important to ask ourselves, did the writer have any cultural options available to him? और एक और जो सवाल है वो ये यहाँ पर पैदा होता है कि क्या जो लिखने वाला है उसके पास ऐसी ऑप्शंस जो कल्चरल ऑप्शंस मौजूद हैं कि नहीं है. So if we go back to 1 Timothy 2, where Paul does not permit women to have authority over men or teach them, in the Roman Empire, women were never supposed to publicly address men, even their own husbands. और अगर हम ये मामला देखते हैं क्रंथियों जो दूसरे तिमोथियस के अंदर लिखा हुआ है कि जो औरतें जो हैं वो कलीसिया के मजमा के अंदर नहीं बोल सकती, तो हम इसी मामले को जो है वो देखते हैं कि रोमी जो दौर था जो सल्तनत थी उसके अंदर जो औरतें थी वो मर्दों को कभी भी मुखातब नहीं करती थी, यहाँ तक कि वो अपने खामदों को भी मुखातब ना करती थी. So even if Paul wanted women to be equal in the church to men, it would not have been culturally wise for him to do that in churches because the church would have been looked upon badly. और हालांकि जो बाइबल का जो मेन जो मरकजी जो पैगाम है वो यही बताता है कि सब जो हैं वो बराबर हैं और पौलुस इसका बयान भी करता है और जगहों पे, लेकिन कई दफ़ा वो इस बात के ऊपर जोर नहीं देता क्योंकि उस वक्त की जो सकाफत थी वो इजाज़त नहीं देती थी कि जो औरतें हैं वो कलीसिया के मजमा में बोलें. Another thing that we need to be careful about is there might be subtle differences between our culture and the cultures of the first century. So we need to study those cultures of the first century very carefully. और बाइबल के खतूत की तशरीह या बाइबल के किसी भी हिस्से की तशरीह करने के लिए ये जो कायदा है ये बहुत ज़रूरी है. एक तो हमें अपने कल्चर का पता होना चाहिए और दूसरा जिस दौर में वो बात लिखी जा रही है, जिस जगह पर लिखी जा रही है, वहाँ के कल्चर को जो जानना है वो बहुत ज़रूरी है. And then finally, we must be charitable toward one another as we discuss this option. और आखिर में जो है जब भी हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमें जो है एक दूसरे के साथ बड़ा मुखलिस होने की जरूरत है. Because cultural relativity is a very, very controversial idea in biblical interpretation. और जो कल्चरल रिलेटिविटी है वो एक काफी मुश्किल
तरह का ख्याल है बाइबल के कल्चर के अंदर और उसको तशरीह करने के दरमियान. And as I noted earlier, the example of women in ministry, talked about in 1 Timothy chapter 2, is a very controversial issue around the world today in churches. और अभी यही जो मामला जो पालूस जो है, जो उसने पहले तिमोथियस उसके 2 बाब और 9 से 15 आयत के दरमियान बयान किया, जिसमें वो औरतों का खिदमत करने का इशू है, तो अभी ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया हुआ है पूरी दुनिया में. कुछ कलीसियाएं कहती हैं कि औरतें खिदमत कर सकती हैं और कुछ जो है वो कहती हैं कि वो बिल्कुल नहीं कर सकती. So when we look at this issue of women in ministry, we need to understand what really was going on in Paul's day when he was talking about this, and then try to understand whether or not it was a universal rule or just something specific to that culture at that time. इसीलिए जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हम देखें उस वक्त पौलुस जहां पर ये बात कर रहा है वहां का कल्चर क्या कहता है, या उस वक्त ये कल्चर जो था पूरी दुनिया में था. Now, at this point, we still have a little bit more to cover on this topic, but our time is pretty much up. So we'll finish epistles next week and then move into interpreting Revelation. और अभी जो है हमारा वक्त जो है वो मुकम्मल हो गया है आज के लेक्चर के लिए, और हम अगले लेक्चर के अंदर पूरे जो एपिस्टल्स हैं उसको हम ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे 2 हफ्ते के बाद की जो मुकाशवा की किताब है उसको किस तरीके से जो है तशरीह की जाती. So we've covered a lot of territory today, so this might be a good place to let our brains rest.